Hello students, I hope you all are fine. Today I want to teach you how to write a job application. Job application is very important if you want to get job. That's why CBSE has included it in your syllabus. So you should not learn it because you are going to face a question of job application in your exam. You should learn it by heart because you will have to write it after 2 or 3 years. You will need job and then you will have to write it. At that time you will just start searching here and there. You will start typing on Google how to write a job application. So it is better to learn it now and save your time later. And it is must. It may be that you are asked to write this kind of application without giving you prior information, and at that time you will not be having phone. So you should learn it now and you should learn it carefully, attentively. It is very important. So job application we are going to start today, and for that I would like to give you a question, a standard question which is similar to those questions which we face in exams. So let me show you the example. This is a question. Such type of questions are faced by students in exam. So what is written here? You are Ketan Pandey of 63 Civil Lines, Delhi. Write an application for the post of an accountant to the area manager of Gayatri Consultants. Look at this. You are writing for the post of an accountant and you want a job in Gayatri Consultants, and you have to write the job application to the manager. You have to address the manager, and the company is in 2 Barakhamba Road, New Delhi, and you have to give your detailed biodata. So let me tell you what is biodata. Biodata and resume, these two things are required. Resume is not detailed information of the person. In biodata you will have to give your personal information also. In resume you will give only educational and work experience information only, but in biodata you will tell your personal details also, your name, your date of birth, your marital status, and you are expected to tell something else about you so that they can understand what is the thinking of the person. Means they want to ascertain what kind of person they are hiring. So you should have to give detailed biodata. So I think you know how to write a formal letter. So job application is also a formal type of application, formal letter. So you will have to write the address. The sender's address is in the beginning. So नोटिस इट, केतन पांडे स्टार्टिंग में नहीं आएगा. बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ही लिख देते हैं केतन पांडे. ये लास्ट में आएगा जब आप साइन करोगे. यहाँ से स्टार्ट करोगे आप एड्रेस से. 63 सिविल लाइंस, फर्स्ट लाइन में ये आएगा, सेकंड लाइन में दिल्ली, थर्ड लाइन स्पेस छोड़ करके फोर्थ लाइन में आप डेट डालोगे, एंड देन यू विल एड्रेस द मैनेजर, एंड in the next line you will write Gayatri Consultants, and then you will write the address New Delhi, and after that you will write subject. So I have written this application. Let me show you. This is the answer of this question that I wrote. Look at this. In the left side I started it with 63 civil lines. First line मैंने आपको बोला था, फर्स्ट लाइन में ये आएगा आपका 63 सिविल लाइंस, सेकंड लाइन में दिल्ली, देन आई लेफ्ट वन लाइन और उसके बाद डेट, फिर एक लाइन और छोड़ करके द एरिया मैनेजर, गायत्री कंसल्टेंट कंपनी का नाम, नेक्स्ट लाइन में 2 बाराखंबा रोड, एंड देन वेयर इज दिस कंसल्टेंट कंपनी इन न्यू दिल्ली. So you have to write it like this. Every letter should be written like this. So starting में sender's address, here sender's address,
then date. After leaving one line space, date. After leaving one line space, you will address the person whom you are writing, and then subject. So what is the subject? Why are you writing this application? Application for the post of an accountant. After mentioning the subject, you will address dear sir, and then you will start writing. In the first paragraph, you will mention why you are writing this application with reference to your advertisement in the Hindu dated 9th August 2020. आपने कल न्यूज़पेपर में ऐड देखी थी द हिंदू में, और उसी ऐड के रेफरेंस में आप लिख रहे हो. इट मे बी कि आपको एग्ज़ाम में एक ऐड दिखा दी जाए और उस ऐड को ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन लिखनी हो, तो आपको वहाँ पर अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि भाई जो ऐड है वो किस पोस्ट के लिए है, और जिसने ऐड दी है वो पर्सन कौन है, किसको हमें लेटर लिखना है, एप्लीकेशन किसको लिखनी है. तो आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके लिखनी है, कोई भी चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी. यू विल हैव टू राइट इट आफ्टर यूजिंग योर माइंड. सो आपका माइंड यहाँ पर यूज़ होगा. और ये अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो आपको यहाँ पर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. ये भी चीज़ नोटिस की जाएगी कि भाई आपको पता है, इतनी जनरल नॉलेज आपको है कि अकाउंटेंट बनने के लिए क्या किस टाइप की स्टडी करनी चाहिए बंदे को. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो अकाउंटेंट की जॉब के लिए, और आप बेसिकली आप तो हो ही नहीं वो बंदे, केतन मेहता आप नहीं हो, बट आप केतन मेहता की तरफ से लिख रहे हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो आपकी यहाँ पर नॉलेज ये चेक होगी कि आप वहाँ पर क्वालिफिकेशन में लिख दो कि भाई आपने बीटेक कर रखी है. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम देयर? यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट कि अकाउंटेंट बनना है. बीटेक करने के बाद अकाउंटेंट कैसे बनोगे? आपको अकाउंटिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो वही स्टडी कराओ उस बंदे को, वही क्वालिफिकेशन में डाली जाए चीज़ें. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. वही बंदा तो लिखेगा, वही बंदा तो अप्लाई करेगा जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी. सो इट इज़ ऑल्सो चेक्ड. इन्वाइटिंग एप्लीकेशन, ये द हिंदू में आपने इन्वाइट की थी एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई मैंने किस लिए एप्लीकेशन लिखी है, कहाँ से आपको पता लगा है कि भाई यहाँ पर वैकेंसी है. आपने लिख दिया द हिंदू न्यूज़पेपर से आपको पता लगा है. ओके. आफ्टर दैट, एज रिगार्ड्स माई क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है ये बात. एज रिगार्ड्स माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा. मैं अपना बायोडेटा साथ लगा रहा हूँ. टू इनेबल यू टू मेक एन असेसमेंट, आपको इस योग्य बनाने के लिए कि आप असेसमेंट कर लो ऑफ माई सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट. इन केस माई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड, I will be available for the interview on any day of your convenience. Means you have said कि you are available for interview whenever they want you. In the third paragraph, what will you do? If selected, you will assure. If selected, I assure you that I shall work with utmost dedication. Means पूरे dedication के साथ मैं काम करूँगा and sincerity के साथ काम करूँगा to the full satisfaction of the firm. फॉर्म को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की मैं कोशिश करूँगा. इफ़ आई एम सिलेक्टेड, आई विल डू द वर्क, आई विल डू हार्ड वर्क. सो यू हैव गिवन योर एश्योरेंस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन you are going to be for the firm, how dedicated you are going to be for the firm. बेसिकली जॉब एप्लीकेशन जो होती है ना, वो अपनी खुद की सारी स्किल्स और सारी की सारी एबिलिटीज़ को शो करने के लिए होती है, सो दैट आप सामने वाले बंदे का आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए एंड दे वांट टू हायर यू. अपने आप को सेल करना ही होता है जॉब एप्लीकेशन से, अपनी सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें बतानी होती है. बट इतना भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप झूठ बोल दो उसमें सब कुछ, क्योंकि वो डेफिनेटली पता लग जाता है कुछ दिनों के बाद. हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे ही पता लग जाए कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा बोस्ट कर दिया इंटरव्यू में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव टोल्ड लाई. दैट्स वाई वी शुड बी स्टिक टू द रियलिटी. हॉपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, योर्स फेथफुली केतन पांडे. अब आपने एनक्लोजर क्या दिया है, क्या एनक्लोजर दिया आपने? बायोडेटा दिया है. आपको जो एप्लीकेशन जब पेपर में लिखनी है तो जस्ट ये एनक्लोजर लिखने के बाद, यहाँ पर बायोडेटा लिखने के बाद, यहीं से बायोडेटा स्टार्ट करना है आपको. बायोडेटा कैपिटल में लिखना है,
स्टार्ट करना है यहीं से, सेंटर में बिल्कुल पेज के लिख करके और फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। और मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है इसको। लुक एट दिस, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ बायोडेटा लिखा हुआ है, हेयर I wanted to write biodata here about this, so it is on the other page, previous page पर है वो, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया है। so how you should start with name, name Ketan Pandey, date of birth mention it here, father's name it is also mentioned, correspondence address इट में भी कि आपने लेटर जब लिखा है आप कहीं और रह रहे हो और आप चाहते हो कि आपको अगर कोई कम्युनिकेशन आपके साथ किया जाए तो दूसरे एड्रेस पे किया जाए, तो यहाँ पर आप डिफरेंट एड्रेस भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस घर आपका किसी और सिटी में है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बट डोंट मेंशन ओनली एड्रेस, यू शुड ऑल्सो टेल योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल आईडी। देन nationality Indian, and now come to the academic qualifications. What are your academic qualification you will mention in this? If you can make this table it is better. If you are not able to make this table, if you don't have time, you can write it without making table, but if you make a table it will be presentable, it will look good, so you should try to make this. So your AISSE, you passed it from CBSE board, you have not mentioned the name of the school, 90% marks, 12th क्लास आपने पास की CBSE से, स्कूल नेम इज़ नॉट मैंसनड क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो जो ज़रूरी नहीं है लिखना यहाँ पर, और लिख भी सकते हो आप स्कूल नेम, 80%। नाउ कम टू द पॉइंट, बीकॉम ऑनर्स की है, अकाउंटेंट बनना चाहता है तो डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम तो डेफिनेटली पढ़ी होनी चाहिए उस बंदे ने, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया है ना, ऑनर्स से पढ़ने के बाद अकाउंटेंट ही लगेगा क्या? बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहिए बंदा। फिर भी जॉब नहीं मिल रही है तो जॉबलेस रहने से तो अच्छा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, रामजस कॉलेज से की है 70% मार्क्स के साथ, और उसके बाद M.Com भी की है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। इतना क्वालिफाइड बंदा है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बट इट शोज़ हाउ फुल ऑफ नॉलेज यू आर, कि आप लिख रहे हो, आपको पता है अकाउंटेंट की जॉब के लिए तो डेफिनेटली बिजनेस स्ट्रीम की ही नॉलेज होनी चाहिए, तो आपने ये मेंशन की है। यहाँ पर आपने वो गलती नहीं की है कि आपने B.Tech लिख दिया, यहाँ पर BA लिख रखा है, क्योंकि अकाउंटिंग की स्किल्स के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, और वो कहाँ से आएगी? आपने कहीं से सीखी है, B.Com की है, M.Com की है, या आपने फिर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है अकाउंटिंग में, डेफिनेटली वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। सो इट वाज done by from Ramjas College with 70% marks. So work experience, it is also needed. वर्क एक्सपीरियंस का क्या है आपका? आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट विद MIT स्कूल ऑफ फॉर 1 ईयर। सो 1 साल से आप यहाँ पर अकाउंटेंट के तौर पर काम करो, तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, अकाउंटेंट के तौर पर आप काम कर रहे हो पिछले 1 साल से, तो आपका एक्सपीरियंस है। और दूसरा एक्सपीरियंस, वर्कड एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट विद PK कंसल्टेंट्स फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से, 1 साल का यहाँ से, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 3 साल का असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर और 1 साल का मेन अकाउंटेंट के तौर पे। सो कंपनी के लिए, फर्म के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इतना क्वालिफाइड बंदा है और 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ, आपको तो इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा। लैंग्वेज नॉन इंग्लिश एंड हिंदी। मैरिटल स्टेटस मैरिड। सो यहाँ पर भी एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको एम्प्लॉयर्स जनरली मैरिड लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई? बिकॉज मैरिड पीपल आर नॉट फुल ऑफ ईगो। घमंड निकल चुका होता है, जिम्मेदारियाँ ऊपर आ चुकी होती हैं, तो बंदा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, परिवार के बारे में सोचता है। तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले एंग्री भले ही कितना ही हो, वो परिवार के बारे में सोच के चलता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। सो दे थिंक कि मैरिड जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होते हैं, सिचुएशंस के सामने हार नहीं मानते हैं, बिकॉज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे हैव लाइबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ दिस।
तो अनमेरिड और मैरिड में ये डिफरेंस है, एम्प्लॉयर्स थोड़ा सा सोचते हैं। स्किल्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड अकाउंटिंग स्किल्स, दैट इज़ मस्ट नीडेड। कम्युनिकेशन स्किल्स और अकाउंटिंग स्किल्स आपके अंदर है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग स्किल्स लिखी है आपने, दैट इज़ प्लस पॉइंट, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अकाउंटिंग स्किल्स नहीं लिखते, तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। हॉबीज़, नाउ वाई आर पीपल एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर हॉबीज़। बायोडेटा में जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज़। वो जनरली क्या पता लगाना चाहते हैं, दे वांट टू नो कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, किस टाइप का बंदा है ये। अगर आप यहाँ पर लिख दो कि दैट यू लाइक टू प्ले पबजी, कौन जॉब देगा आपको? भाई ये बंदा तो गेम में लगा रहेगा, सारे दिन काम नहीं करेगा, पबजी खेलेगा। और आप लिख दो यहाँ पर आई लाइक WWE, भाई फाइटिंग का नेचर है। तो स्किल्स जो हैं, जो हॉबीज़ जो हैं, वो इंसान के नेचर को डिफाइन करती है कि जिस टाइप की हॉबीज़ होगी उसी टाइप का नेचर होगा बंदे का। सिंगिंग आपको पसंद है, इट मीन्स यू आर वेरी लाइवली पर्सन, संजीदा पर्सन हो आप। सिंगिंग पसंद करते हो तो इट मीन्स आप बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी हो। आपको गाना अगर पसंद है, पेंटिंग पसंद है, कलाकार हो आप, ज़िंदगी की हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, आप एक क्रिएटिव इंसान हो। रीडिंग पसंद है, रीडिंग जिस इंसान को पसंद होती है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा होता है, क्योंकि नॉलेज होती है और वो नॉलेज फिर फर्म के काम आएगी। तो ये सारी स्किल्स, ये हॉबीज जो हैं, ये आपके प्लस पॉइंट है। इस चीज़ को देखने के बाद एम्प्लॉयर जो हैं वो डेफिनेटली आपको कॉल करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर झूठी चीज़ें लिख दो, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पेंटिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, आपकी पेंटिंग, आपने लास्ट पेंटिंग कौन सी बनाई थी, क्यों बनाई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि दैट यू आर लाइंग। रेफरेंसेस, व्हाट आर रेफरेंसेस? रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस वो लोग होते हैं जो आपकी गारंटी देते हैं। आप इन लोगों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हो आपके जहाँ पर आपने अप्लाई किया, ताकि वो लोग अगर चाहें तो इन लोगों के साथ कांटेक्ट करके आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनसे आपकी पॉजिटिव चीज़ें ही जाएंगी। मीन्स अगर आपका जहाँ पे आपने अप्लाई किया वो बंदे अगर इन लोगों से फ़ोन करके पूछें तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें ही जाएंगी, और आप ऐसे ही लोगों का रेफरेंस देते हो। ऐसे लोगों का तो देगा ही नहीं कि भाई आपके पास बारे में पूछा जाए और वो तुरंत आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बताना शुरू कर दें। सो रेफरेंसेस, ऐसे 2 रेफरेंस आपको देने हैं। यहाँ पर एक दिया है मिस्टर मनोज रावल का, सेकंड दिया मिस्टर अनिल कुमार का। अब ये अनिल कुमार जो है पीके कंसल्टेंट्स से ही हैं। इनका मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह नहीं डाला। आप चाहो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, डालना चाहिए वैसे तो, इनका भी डालना चाहिए। पेज फिनिश हो गया था, नेक्स्ट पेज पे जा रही थी बात, इसलिए मैंने नहीं डाला, बट यू हैव टू पुट इट हेयर। मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन, ईमेल आईडी एंड डेजिग्नेशन, कि क्या काम करते हैं वो लोग और कहाँ वो जो काम करते हैं वो किस फर्म में काम करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पीके कंसल्टेंट्स में। पीके कंसल्टेंट्स में आपने भी काम किया है, बिकॉज यू आर केतन मेहता नाउ। तो पीके कंसल्टेंट्स में आपने जब काम किया था तो वो आपके सीनियर अकाउंटेंट थे, आपसे बड़े खुश थे, इसलिए आपने उनका रेफरेंस दे दिया। और एक आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट थे जो आपके साथ काम करते थे, वो भी आपसे बड़े खुश हैं क्योंकि आपकी उनके साथ बनती थी, आपने अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया। दैट्स वाई दे आर ऑलवेज फुल ऑफ प्रेज विद यू फॉर यू, सो यू हैव गिवन देयर रेफरेंसेज। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट अ जॉब एप्लीकेशन, एंड आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, यू वुड बी एबल टू राइट इट ईजीली। सो एप्लीकेशन लिखने के तुरंत बाद आपको बायोडाटा या रिज्यूमे यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर पेपर में पूछा गया रिज्यूमे तो भी आप ये पर्सनल डिटेल्स डाल ही देना, बायोडाटा की तरह ही सारी डिटेल्स डाल देना। दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। सो फॉर्मेट वही रहेगा, वो जो फॉर्मल लेटर का होता है, सेंडर्स एड्रेस स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद जिस भी पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हो वो, और सब्जेक्ट, एंड देन यू विल राइट द लेटर इन 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स तो होने चाहिए, टेक केयर ऑफ इट। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टीच यू टुडे, and we'll do something, some new topic tomorrow from the writing section. So till then, my dear students, take care, bye.